Hello student, in previous class we have completed Mauve coupling. Here we are discussing about the flange coupling. Okay. So what is the coupling? Okay. The flange coupling usually applied to having applied to a coupling having two separate cast iron flange. इसमें क्या होगा, इस टाइप ऑफ कपलिंग में दो सेपरेट कास्ट आयरन के फ्लैंज होंगे और each flange mounted on the each shaft which is keyed through the which is keyed by the use of counter Sankey, rectangular Sankey या edge type Sankey. Okay. So one flange mounted on the one end of the shaft, other flange mounted on the other end of the shaft. Then after it keyed, okay. Then after keyed, okay. So finally both flange are connected through the nut end bolt. We can see this picture. This is the flange coupling. Okay, flange coupling. Here we can see this one is the one flange and this one is other flange. Okay, both flange are connected through the nut and bolt. You can see, okay, nut and bolt, and this flange made by the cast iron and which through this coupling we have transferred the load or power from one shaft to other shaft. Okay, so this is the cross sectional view of flange coupling. We can see first one here, this one is the this one, okay, this one is the one flange and this one is the other flange, okay, which is shown by the shaded red portion is one flange and blue portion show the other flange, another flange. Okay, so both are connected through the both flange are connected through the nut and bolt, you can see. Okay, and both flange and also both flange mounted on the two shaft, two end of shaft. One is the one shaft is this one is the one shaft, this one is the one shaft, and other is this. Okay, this one is the other shaft. Okay. This one is the other shaft. Okay, so we can see we for designing of the flange coupling we have considered some dimension. Okay, for designing purpose, that we can assume we can consider a diameter of shaft is equal to small d. Then all the diameter we have taken in the form of shaft diameter. Yani we can take a reference of shaft diameter. Okay, shaft diameter have a reference for all dimensions such as the, okay, you can see a diameter of the outer diameter of the hub
outer diameter of the hub is D denoted by the capital D. The capital D is equal to 2D. Okay, वही, and also distance between the two nuts. Okay, okay, distance between a diameter of between the two nuts, center of the portion of two nuts is equal to D1 equal to 3D, and diameter of the outer यानी topmost यानी top diameter of the flange, okay, यानी upper portion यानी यानी outer diameter of the flange is equal to D2 is equal to हो जाएगा 4D, यानी जो D2 होगा वो सब डायमीटर का 4 टाइम्स होगा, जो आपका दो नट से कोरिलेट करके, अगर दो नट जो अगर इसमें जो नट हम यूज कर रहे हैं उसके सेंटर से होते हुए अगर हम सर्कल खींचें तो उस सर्कल का डायमीटर क्या होगा, D1 हम डिनोट कर रहे हैं, D1 होगा 3D के बराबर। दीज ऑल डाटा we have consider from the design data book as a designing purpose. Okay, so here we can we can discuss types of flange. Okay, first one is the unprotected type flange coupling. Okay, we can see this coupling is the unprotected type flange coupling. Okay, यानी सिंपल जो कपलिंग है उसको बोलते हैं हम अनप्रोटेक्टेड टाइप। ओके, यानी ये क्या होगा, दो फ्लैंज होंगे और दोनों फ्लैंज के किससे कनेक्टेड, दो फ्लैंज होंगे, दोनों फ्लैंज दो शाफ्ट के एक एंड पर क्या होंगे, होल्ड माउंटेड होंगे, माउंटेड होने के साथ वो कीड होंगे, दोनों को कीड किया गया रहेगा, मतलब की के थ्रू उसको अटैच किया रहेगा। ओके, जिससे कि वो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन ना हो। ओके, शाफ्ट और कपलिंग के फ्लैंज के बीच जो फ्लैंज के बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, दोनों एंड पे क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, नट एंड बोल्ट से सिंपली हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, अटैच करते हैं। तो देखिए आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो नट एंड बोल्ट है यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाया गया है, कि जैसे कि प्रोटेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि जैसे कि रनिंग पीरियड में एक बाइक स्टार्ट हो जाए तो जो वर्कमैन होगा उसका जैसे भी उसका बॉडी वो हार्म करेगा, यानी अगर हाथ से कराओ तो हाथ कट जाएगा। ओके, तो उस सबसे प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड फ्लैंज। ओके, तो ये है अनप्रोटेक्टेड फ्लैंज। ओके, वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो डायमीटर होगा, फ्लैंज का डायमीटर यहाँ पर 2D होगा, आउटर डायमीटर फ्लैंज के हब का। ओके, फ्लैंज हब का डायमीटर, वहीं लेंथ होगा कितना अनप्रोटेक्टेड का 1.5D, यानी जो उसका लेंथ होगा जो शाफ्ट डायमीटर का 1.5 टाइम्स होगा। वहीं पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट हो, जो बोल्ट से होते हुए और जो सर्कल हम खींचेंगे। ओके, पिच सर्कल डायमीटर और बोल्ट होगा आपका D1 और 3D होगा। आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लैंज, ओके, ये क्या होगा, 4D होगा। ऑल डाटा वी हैव टेकन फ्रॉम द design data book. Okay, so this one is the next one is the protected type flange coupling. Okay, तो protected type flange coupling जो है आप देख सकते हैं, इसमें देखिए जो भी नट होगा, नट को एक प्रोटेक्शन से, यानी जो फ्लैंज होगा फ्लैंज में ही एक प्रोटेक्शन शील्ड लगाया रहेगा, जिससे कि जो बोल्ट जो उसमें नट एंड बोल्ट है वो कवर्ड रहेंगे। कवर्ड होने से क्या होगा, क्या वर्कमैन अगर वर्क कर रहा हो तो उससे क्या हार्म होने का जो चांस है, यानी उस नट एंड बोल्ट से अगर एक बार एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट से हार्म होने का जो सीरियसनेस है या हार्म होने का जो चांस है वो क्या होगा, कम हो जाता है। ओके,
तो इसलिए हम यूज करते हैं प्रोटेक्टिव टाइप। ओके, बाकी टोटल डायामीटर जो होगा क्या, सब चीज़ आपका क्या होगा, सेम होगा। ओके, टोटल सेम होगा। ओके, बस इसमें एक चीज़ बढ़ जाता है, उसका थिकनेस, फ्लैंज का जो थिकनेस है, तो एक प्रोटेक्शन का थिकनेस आ जाता है टीपी दोनों तरफ, बाकी सब वही रहेगा जो आपको अनप्रोटेक्टेड में यूज होता है। ओके, सिर्फ इसमें फ्लैंज का एक पोर्शन जो प्रोटेक्टिव पोर्शन बढ़ जाता है, थिकनेस उसका फ्लैंज का। ओके, बस यही, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब जो रहेगा आपका सिंपल अनप्रोटेक्टेड टाइप ही रहेगा। थर्ड वन है आपका मैरिन टाइप फ्लैंज कपलिंग। मैरिन टाइप एक्चुअली यूज किया जाता है, मैरिन टाइप फ्लैंज कपलिंग का मेनली यूज किया जाता है कहाँ, जैसे कि मैरिन जो भी आपका जहाज वहाज है, ठीक है, वहाँ पर अगर हमको कपलिंग करना होता है, वहाँ पर जब हमें कपलिंग करना होता है तो हम यूज करते हैं मैरिन कपलिंग। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अगर इसका हेवी लोड अगर आपको ट्रांसफ़र करना है, हेवी लोड ट्रांसफ़र करना होता है, ओके, तो हम मेनली यूज करते हैं हम क्या, फ्लैंज कपलिंग। ओके, यानी मैरिन टाइप फ्लैंज कपलिंग। ओके, देखिए इन मैरिन टाइप फ्लैंज कपलिंग द फ्लैंज आर फोर्ज इंटीग्रल विद द शाफ्ट एज शोन इन फिगर। ओके, आप देख सकते हैं जो एक है ना आपका, जो नट एंड बोल्ट होगा ना, एक के साथ मतलब एक फ्लैंज के साथ का इंटीग्रल पार्ट होगा, तो जब इंटीग्रल पार्ट होगा तो क्या होगा, जो ये होगा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपेरिजन विद द अदर अदर प्रोटेक्टिव अनप्रोटेक्टेड टाइप ऑफ फ्लैंज कपलिंग। ओके, सो यू कैन, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस होगा आपका नट एंड बोल्ट का। यहाँ पर नट देखिए टोटल इंक्लाइंड फॉर्म में रहेगा, यहाँ पर इंक्लाइंड फॉर्म में रहेगा, दोनों तरफ रहता है, यहाँ पर सिर्फ एक तरफ रहता है। ओके, सो यहाँ पर नट एंड बोल्ट का जो नट एंड बोल्ट का जो नट बोल्ट का जो पोर्शन होगा, इन पोर्शन है दोनों तरफ होगा, यहाँ पर सिर्फ एक तरफ नट लगा रहेगा। ओके, ये होता है आपका मैरिन फ्लैंज कपलिंग। ओके, अब देखिए डिजाइन करना है, डिजाइन ऑफ फ्लैंज कपलिंग। तो डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, जितने भी डाटा है वी हैव एज्यूम द सम नोटेशन फॉर डिजाइनिंग पर्पस। तो जो हमारा नोटेशन होगा फॉर द कपलिंग, डी होगा, इसमें स्मॉल डी होगा, वो डायमीटर होगा इसका शाफ्ट का। जो कैपिटल डी होगा वो डायमीटर, आउटर डायमीटर ऑफ हब होगा, जो आपको हम पहले दिखा चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस इज द आउटर डायमीटर ऑफ हब, आप देख सकते हैं। आप ये दोनों हब का क्या है, डी जो है यहाँ पर कैपिटल डी, ये आउटर डायमीटर है किसका, हब का। ओके, एंड और डी, आप देखें अगला होगा आपका D1 जो है आपका, D1 तो कैपिटल D1 है तो नॉमिनल या आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बोल्ट है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बोल्ट D1 है आपका। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटसाइड डायमीटर ऑफ द बोल्ट D1 है आपका। एंड D1 जो कैपिटल D1 है आपका, डायमीटर ऑफ बोल्ट सर्कल है, बोल्ट सर्कल का डायमीटर जो आपको दिखा चुके हैं 3D के इक्वल होगा। यहाँ पर D1 जो होगा वो 3D के इक्वल होगा। ओके, एंड फ्रॉम डिजाइन ऑफ डाटा बुक, और एन है जो नंबर ऑफ बोल्ट कितना, उसमें नंबर ऑफ बोल्ट लगा हुआ है। TF जो है थिकनेस ऑफ फ्लैंज है। ओके, TS टाउ एस टाउ बी, टाउ के क्या क्या है आपका, एलोबल शेयर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट बोल्ट एंड की के लिए है। ओके, की मटेरियल के लिए अलग अलग। ओके, वहीं टाउ सी है एलोबल शेयर स्ट्रेस फॉर द फ्लैंज मटेरियल के लिए। ओके, ऊपर वाला है TS शेयर स्ट्रेस फॉर शाफ्ट, TB बोल्ट के लिए है, एन मतलब टाउ बी जो है क्या, बोल्ट शेयर स्ट्रेस फॉर बोल्ट, टाउ के है क्या, शेयर स्ट्रेस फॉर की, टाउ सी है शेयर स्ट्रेस फॉर द फ्लैंज मटेरियल। ओके, विच इज कास्ट आयरन। सिग्मा CB एंड सिग्मा CK एलेबल क्रशिंग स्ट्रेस फॉर बोल्ट
एंड की, ओके। एंड सिग्मा सी के क्या है, किसके लिए है ये, सिग्मा सी के की के लिए, ओके। सिग्मा सी भी है किसके लिए, क्रशिंग स्ट्रेस है किसके लिए, बोल्ट के लिए। सिग्मा सी है सी के किसके लिए, क्रशिंग स्ट्रेस है किसके लिए, आपका बोल्ट के लिए, ओके। अब देखिए डिजाइन ऑफ हब। हब को डिजाइन करने के लिए तो हब आप देख सकते हैं क्या है आपका, ये हॉलो फॉर्म होगा। हॉलो फॉर्म तो हॉलो फॉर्म होगा, हॉलो सिलेंडर के टाइप का होगा ये, क्योंकि इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो शाफ्ट के डायमीटर के इक्वल होगा, और जो आउटर डायमीटर होगा कैपिटल डी इक्वल टू हो गया 2D। तो ये हॉलो सिलेंडर टाइप है, तो हम सीधे हॉलो सिलेंडर का जो कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कितना टॉर्क ट्रांसमिट करेगा एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में थ्रू कपलिंग, यानी कपलिंग जो है, जो कपलेंज है कितना ट्रांसमिट करेगा टॉर्क, वो हो जाएगा आपका सीधा अब अगर हम कोरिलेट करते हैं हॉलो शाफ्ट के थ्रू, हॉलो शाफ्ट से तो होता है टॉर्क कितना ट्रांसमिट होगा हब के थ्रू, यानी फ्लैज कपलिंग तो टी इक्वल टू होता है पाई/16 इंटू टाउ सी d4 माइनस d4 बाई मी डी, ओके। The outer diameter of hub usually we have taken twice of the diameter of shaft, okay. Therefore the above relation introduce the shear stress in the hub by may be checked। कितना shear stress डेवलप हुआ उस हब में, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यानी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टॉर्क आपको दिया रहा है कि टॉर्क कितना ये हब ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि जो हब होगा जस्ट लाइक जो आपका फ्लैज का जो हब होगा जस्ट लाइक आपका होगा हॉलो सिलेंडर, इसलिए इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं। किसे कोरिलेट करेंगे, हॉलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट, हॉलो सिलेंड्रिकल शाफ्ट का जो हम लोग डिजाइन किए थे उससे कोरिलेट करेंगे। और लेंथ ऑफ कितना हब होगा, एल इजकल टू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एल होता है आपका लेंथ ऑफ हब होता है 1.5 टी फ्रॉम डिजाइन डाटा बुक, ओके। दूसरा हुआ आपका डिजाइन ऑफ की। द की इज डिजाइन विथ यूजुअल प्रॉपर्टी, ओके, एंड चेक एंड चेक एंड चेक एंड चेक for shearing and crushing. In previous class we have completed, okay. So we can see we can watch the, for designing of key we can watch the video of design of key, okay. So third one is the design of flange, okay. तो फ्लैंज कितना टॉर्क क्या कर ट्रांसमिट कर रहा है, द फ्लैंज at the junction of hub is under the shear which transmitting the torque, therefore the torque transmit कितना करेगा टॉर्क, ओके। तो आप देख सकते जो shear है, shear के थ्रू कितना ट्रांसमिट होगा, ओके। तो क्या होगा इसका, देखिए सरकमफ्रेंस जो आपका ऊपर वाला जो जंक्शन है ऊपर वाला, तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द हब हो जाएगा आपका, थिकनेस ऑफ फ्लैंज हो जाएगा, ओके, क्योंकि वही तो क्रश करके ट्रांसमिट और शियर स्ट्रेस ऑफ द फ्लैंज इनटू रेडियस ऑफ हब, ओके। क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है आपका टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर होगा फोर्स हो जाएगा आपका टाउ सी जो आपका शियर स्ट्रेस है और फ्लैंज है आपका, एंड पाई डी हो गया आपका उसका सरकमफ्रेंस हुआ, और टी एफ शो करेगा उसको कि किससे, सरकमफ्रेंस का टी एफ जो शो करेगा आपका उसके थिकनेस के। तो आउटसाइडर जो उसका एरिया होगा, आउटसाइडर एरिया यानी आउटसाइडर एरिया ऑफ द फ्लैंज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी एफ, ओके। यानी टेंजेंशियल जो डायमीटर आउटसाइडर डायमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आउटसाइडर डायमीटर यहाँ पे जो ऊपर वाला डायमीटर है ऊपर वाला, इसी के थ्रू तो ऊपर वाला डायमीटर कितना होगा आपका पाई डी टी एफ, ओके। यानी पाई डी हो जाएगा उसका सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, टी एफ हो जाएगा उसका थिकनेस। तो आउटर डायमीटर हो गया उसका, तो आउटर सरफेस का
ये एरिया हो गया, सरफेस एरिया हो गया, उसमें टाउ सी से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया फोर्स, तो ये हो गया फोर टेंजेंशियल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2। ओके, तो ये दे देगा आपका उसका टॉर्क। ओके, कितना टॉर्क प्रोड्यूस है फ्लैंज के थ्रू। ओके, फ्लैंज कितना टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। ओके, तो ये हुआ। अब वही अगर डिजाइन ऑफ बोल्ट अप करेंगे, क्योंकि डिजाइन ऑफ बोल्ट बहुत से हमारे हैं, तो ईच बोल्ट का अगर हम देखते हैं जो क्रॉस सेक्शनल होगा, क्रॉस सेक्शनल डायमीटर होगा, अगर शेयरिंग के थ्रू देंगे, अगर शेयरिंग फोर्स लग रहा है उस पर, शेयरिंग फोर्स अगर लग रहा है उस पर, तो कितना होगा लोड ऑन ईच बोल्ट। ओके, तो π/4 d1 स्क्वायर क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट है। ओके, तो π/4 d1 का स्क्वायर इंटू टाउ भी क्या देगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी उस पर कितना शियर फोर्स लग रहा है। ओके, उस हर एक बोल्ट पे, तो एक बोल्ट पे, ईच बोल्ट पे, तो कितना बोल्ट है, जितना भी मान लें कि n बोल्ट है, तो हमारा टोटल आ जाएगा π/4 d1 इतना। ओके, ईच बोल्ट पे इतना फोर्स लग रहा है, तो उस बोल्ट के थ्रू कितना टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, तो फोर्स हो जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डी डिस्टेंस कितना है आपका, शाफ्ट से उसके बीच का, शाफ्ट से उस बोल्ट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा d1/2। d1 हमारा क्या है, 3D है आपका। ओके ओके, तो d1/2 यानी हाफ होगा इसका, तो ये हो जाएगा ये टोटल आगे वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ से हम बोल्ट का डायमीटर हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अगला है आपका, वी नो दैट एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग ऑफ द ऑल बोल्ट, जो ऑल बोल्ट जो एरिया रजिस्ट करेगा कितना होगा, नंबर ऑफ बोल्ट तो n है, और कितना रजिस्ट करेगा, तो रजिस्ट कौन सा करेगा एरिया, जो उसका प्रोजेक्शन एरिया होगा। नट का प्रोजेक्शन एरिया जो होता है डायमीटर इनटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज, तो वही तो होगा, जो थिकनेस ऑफ फ्लैंज होगा, जो उसका बोल्ट का डायमीटर होगा, जो प्रोजेक्शन एरिया है। ओके, तो जो प्रोजेक्शन एरिया होगा, जो फ्लैंज के अंदर बोल्ट होगा, जो फ्लैंज के अंदर बोल्ट, उसका प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा, डायमीटर ऑफ बोल्ट इनटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ओके, तो प्रोजेक्शन एरिया, तो वही प्रोजेक्शन एरिया है, तो क्रश होगा, घिसेगा, तो क्रश होगा, तो इसलिए उसको हम जो क्रशिंग के थ्रू जो रेजिस्टिंग एरिया है, जो एरिया फेल होगा, घिसेगा, उसका जो एरिया घिसेगा, जो भी पोर्शन घिसेगा, उसका एरिया क्या होगा, d1 इंटू TF। ओके, इंटू n क्या होगा, अगर n नंबर ऑफ बोल्ट हो, अगर 5 नंबर हो तो 5 बोल्ट होगा, 6 बोल्ट होगा तो n की जगह 6 हो जाएगा। ओके, तो होगा n d1 इन TF। ये क्या है, रेजिस्टिंग एरिया फ्रॉम द बाय द रेजिस्टिंग एरिया बाय द फेल्योर ऑफ द क्रशिंग। ओके, अब तो ये तो रेजिस्टिंग, तो कितना क्रशिंग फोर्स उस पर लगा, यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, यानी वी कैन which amount of crushing force we exert have to exert on the flange, on the bolt, which are n d1 tf into sigma cb। sigma cb is the crushing stress for the bolt। ओके, तो इससे अगर हम क्या करेंगे, तो कितना ये शो करेगा, n इंटू d1 इंटू tf इंटू सिग्मा cb शो करेगा कि उस बोल्ट पे कितना फोर्स लगा, क्रशिंग फोर्स लगा, या उस बोल्ट का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना, या उस बोल्ट पर कितना क्रशिंग फोर्स लगा। जितना भी क्रशिंग फोर्स लगा होगा, जो भी फोर्स एक क्रशिंग फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स होगा। ओके, क्योंकि प्रोजेक्शन एरिया ले रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शन जो प्रोजेक्शन एरिया ले रहे हैं, तो इसलिए क्या जो डायमीटर, जो इसका डायरेक्शन होगा क्रशिंग फोर्स का, वो टेंजेंशियल होगा। किसका टेंजेंशियल, कपलिंग के टेंजेंशियल होगा। ओके, अब देखिए, तो कपलिंग अटैच, तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस किया, तो हो जाएगा आपका क्रशिंग फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्रशिंग फोर्स हमारा क्या है, n d1 tf इंटू सिग्मा cb, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो बोल्ट का जो सर्कुलर, जो बोल्ट का सर्कल है, सर्कल बनेगा बोल्ट का, उसका डायमीटर एंड d1 बाई में 2, तो हो जाएगा रेडियस। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ओके,
तो आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, क्रशिंग स्ट्रेस अगर टी दिया रहे, डायमीटर दिया रहे, सब वैल्यू दिया रहे, तो क्रशिंग स्ट्रेस कितना उसमें डेवलप हो रहा है, ओके, क्रशिंग स्ट्रेस कितना डेवलप इंट्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, उससे आप इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये था टोटल डिजाइन ऑफ फ्लैंज, ओके, फ्लैंज कपलिंग। द I hope all of you got it, okay. We don't got it, okay, thank you. Next topic in next lecture, okay. We can okay, thank you.